practical. I hope my voice is audible to all of you. I'm just cross-checking it. I think it's audible. All right. So I will be beginning with this particular lecture, that is for the centrifugal forces. What we have done in the previous lectures is regarding the centripetal forces, और आज का lecture हमारा है for the centrifugal force. Now I have accumulated some pics over there which can give you an idea that these physical events can only be explained by the centrifugal forces, all these events. And now what are these events? As you can see, the dirt which is getting flied off from the moving wheel, or from this Ferris wheel the childs are going to fly away, or a car is getting on the road, or we have water not falling up from a bucket even if it is inverted, and then we have this amusement roller coaster for you which is completely inverted and still the children are not falling away from it. So what is this kind of a force? This kind of a force is a centrifugal force. ये वही वाली force है जो कि हमें फील होती है जब हम कभी एक सर्कुलर कर्व को नेगोशिएट करते हैं, तो ये हमें बाहर की तरफ धक्का मारती है. ऐसी फोर्स है जो हमें फील होती है, दिखती नहीं है कौन लगा रहा है, हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं. फ्रॉम द न्यूटन आइडियाज. हाँ, तो इसका मतलब अगर न्यूटन आइडिया से एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है तो ये न्यूटन फोर्स तो नहीं होगी. तो फिर ये कौन सी फोर्स होनी चाहिए? इट मस्ट बी द सूडो फोर्स, द फिक्टिशियस फोर्स which comes into play because of the acceleration of the frames. किसका जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं करा, कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे इस वजह से. देखो क्या है कि हमारे पास में ये एक फ्रेम है विच इज अ सर्कुलर फ्रेम. फ्रेम मतलब जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं. तो ऐसे सर्कुलर फ्रेम्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं. सर देखो, मान लो हमारे पास एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो. सो इफ यू हैव अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड विच इज प्लेइंग, तो वो मूव करेगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू मूव इन द सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दोगे तो वो किस फ्रेम में हो गया? वो सर इट इज इन दिस फ्रेम. विच फ्रेम? वो दिस सर्कुलर फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम. फिर क्या होगा? सर दिस फ्रेम इज सपोज्ड टू बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. व्हाई इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम? रीजन इट हैज गॉट एन एक्सेलरेशन. Earth is supposed to be inertial or non-inertial frame. It's a non-inertial frame. Why? It has got an acceleration. Which form of acceleration? Centripetal. So if this particular frame is going to rotate, in that case, there will be an acceleration where, which acts towards the center always. कभी तो direction change हो रहा है ना, कौन सी वाली? Centripetal acceleration. So this frame becomes non-inertial. It's a non-inertial frame because it has got an acceleration acting towards the center. So what will happen? Suppose you place a particle on this. Let's say over here. Where is this particle? It's lying on the non-inertial frame. Let's say on the Earth. So if I construct the free body of the Earth and we as a person are standing here. So isn't there is a centripetal acceleration? Of course there is. And where is the centripetal acceleration going to act? Well, that's going to act towards the center. So that's the direction of the centripetal acceleration of the Earth. है ना? डिपेंड करता है हम किस जगह पर हैं. तो हो सकता है कि हम यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इस जगह हो या फिर इस जगह हो, है कि नहीं? तो फिर सेंटिपिटल एक्सेलरेशन सब जगह सेम होगी? नहीं होगी. यहाँ पर होंगे तो हम अर्थ के साथ में इस पर्टिकुलर सर्कल में रोटेट कर रहे होंगे, यहाँ पर होंगे तो इस सर्कल में रोटेट कर रहे होंगे, यहाँ पर होंगे तो वो रोटेट ही नहीं कर रहे होंगे. तो कीप इट सिंपल राइट नाउ. Let's say this is a particle M which is on this frame. Leave it. This is a particle which is on this particular frame. Which frame? That is a non-inertial frame, right? It's a non-inertial frame. So it must experience a pseudo force. And where must it experience a pseudo force? It must experience a pseudo force in the opposite direction of the frame acceleration. तो frame की acceleration क्या है? Centripetal. तो इस particle पे pseudo force कहाँ लगेगी? Opposite to centripetal. So that should be the direction of the pseudo force. यही pseudo force होती है which can make us fly. That's the pseudo force. वो तभी हमें ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है कि जो ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी ताकि वो सूडो फोर्स को काउंटर करेगी, तभी हमारे पैर जमीन पर टिकेंगे. Otherwise, the Earth is going to rotate about its axis, and because of which we will experience this pseudo. Right? So every time a frame is rotating, that means we are dealing with a rotating frame of reference. Every time this frame is rotating.
that is a rotating frame of reference, then this force must exist. It must exist. And where does it act? It acts, of course, जैसे लगती है. कहाँ लगती है? Opposite to frame acceleration. What is the value? Oh, the value for this pseudo force should be equal to m into AC. क्योंकि फ्रेम की एक्सेलरेशन तो AC है. This is the frame. और इस फ्रेम में ये पार्टिकल रखा है, उस फ्रेम की एक्सेलरेशन कितनी है? That's centripetal. And therefore, the pseudo force is m into AC. कहाँ लग रही है? Oh, it acts radially outwards. क्यों? Because the centripetal was acting radially inwards. So this force must act radially outwards. And what is the value? That is m into AC. What is the value for AC? Sir, AC is equal to V square by R. Or sir, omega square R. So that's equal to either mv square by R or m omega square R. So in the magnitude, this force might seem to you same as the centripetal force. But the action is different. Action is where? Outwards. Radially outward. तो समझ में आता है कि हमें यही फोर्स लगती है जब हम एक सर्कल को नेगोशिएट करते हैं, सर्कुलर रोड को गाड़ी में या बस में, तो हमें बाहर को धक्का लगता है. तो ये बाहर को धक्का क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. अब बोलोगे सर लेकिन तब वो फ्रेम थोड़ी रोटेट कर रहा था. बिल्कुल सही सवाल. तब रोड थोड़ी रोटेट कर रही थी, लेकिन हम तो कर रहे थे. सो देयर कैन बी अ सेकंड सिनेरियो आल्सो. अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फ्रेम है वो खुद रेस्ट पर हो. सुनिएगा ध्यान से. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फ्रेम है वो खुद रेस्ट पर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा हो. रोटेट कर रहा मतलब इसके अबाउट मूव कर रहा हो. कौन? ये ऑब्जेक्ट. ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहा हो लाइक दिस. तो क्या होगा? इसकी ओमेगा क्रिएट हो जाएगी फ्रेम के रिस्पेक्ट में. समझ आ रही है? दोबारा से. या हो सकता है ये जो ऑब्जेक्ट था इट वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो फ्रेम रोटेट कर रहा था, तो भी इसकी फ्रेम के रिलेटिव एक ओमेगा थी. एवरी मोशन इज रिलेटिव. और दूसरा सिनेरियो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो फ्रेम है वो रेस्ट पर हो, फ्रेम नहीं मूव कर रहा, लेकिन ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी ओमेगा क्रिएट हो गई. दैट मींस देयर इज अ रिलेटिव ओमेगा क्रिएटेड. इतना काफी है जी अपने लिए. किस बंदे को ये फील होगा, इस पार्टिकल को ये फील होगा दैट द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल. उसको फील होगा. ये फोर्स तो फीलिंग से ही आ रही है, एक्चुअल तो है नहीं. So whenever there exists a relative angular motion with respect to the frame, language सबसे बढ़िया होगी. This force must act. So whenever there exists a relative angular motion on a rotating frame ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना. ये लैंग्वेज हमारे लिए सबसे बढ़िया होगी. सो देयरफॉर दिस फोर्स मस्ट एग्जिस्ट. सो द सूडो फोर्स मस्ट एग्जिस्ट. अब सूडो सूडो बोले जा रहे हैं. सूडो तो पहले भी लगाई हुई थी हमने. तो ये क्या है? ये किस फोर्स के पास? सूडो ही है, पर सूडो की एक कैटेगरी है जो कि हमेशा कब लगेगी? जब ये लैंग्वेज आएगी. कौन सी? रोटेटिंग फ्रेम. रिलेटिव रोटेटिंग फ्रेम. रिलेटिव रोटेटिंग फ्रेम हो गया. हो सकता है खुद रेस्ट पर हो, पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हो, या फ्रेम खुद रोटेट कर रहा हो, या दोनों पार्टिकल और फ्रेम दोनों रोटेट कर रहे हो, पर उनकी ओमेगा हो रिलेटिव टू ईच अदर. इन दैट केस दिस फोर्स, व्हिच फोर्स? द सूडो फोर्स, जिसको अब हम नाम देने वाले हैं एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. स्पेशल है ना, हमेशा लग रही है रोटेटिंग फ्रेम पे, हमेशा. दिस इज पॉसिबल कि लीनियर मोशन में, सुनिए ध्यान से, दिस इज पॉसिबल इन द लीनियर मोशन कि सूडो फोर्स ना लगे, जब फ्रेम एक्सेलरेट ना करे, पर अगर वो सर्कल पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही लगेगी. और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमेशा लगेगी तो इसका मतलब सूडो फोर्स तो हमेशा लगेगी. So pseudo force is a centrifugal force which must act where? Which must act radially outwards. एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, आपको पूछा जाएगा as a conceptual question, is the centripetal force and centrifugal force Newton third law action reaction forces? Question लिखें. Is the centripetal and centrifugal forces एक्शन रिएक्शन पेयर, AR पेयर? तो आपका दिल करेगा आंसर बोलने का यस. आपका दिल करेगा
आंसर बोलने का। यस, कैसे? आप बोलेंगे सर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है इनसाइड Fc, और सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है आउटसाइड, दैट इज Fc। हो, सेंट्रीफ्यूगल पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली क्या है सर? ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। एब्सोल्युटली, the centripetal force and the centrifugal force, they are actually same in magnitude। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? mv square by r या फिर m omega square r, no doubts, absolutely। Answer: the direction of the centripetal is equal to negative of the direction of the centrifugal, absolutely। So sir, there must be action reaction. I say still no, still they aren't action reaction pair, and the reason for that is the centrifugal force is a non-real force, it's a non-Newton force, and you are talking about a Newton third law, and therefore the centrifugal force cannot be a pair force of centripetal। So the answer for this question is no, despite ki magnitude barabar or direction opposite, still they do not form action reaction pair। The reason centrifugal is a form of a pseudo force which is a non-Newton force। So no, since the centrifugal force is a non-Newton pseudo force। एक्सेलेंट जी, आंसर खत्म हो जाता है करेक्ट शब्दों में, कम शब्दों में खत्म हो गया, नॉन न्यूटन सूडो फोर्स। बढ़िया जी। पर ये फोर्स होती है, फील होती है, और बहुत सारे सवालों का आंसर देती है। जैसे कि इनिशियली इन कुछ सवालों का कि इन बच्चों पे ये फोर्स बाहर लगी होगी, ताही ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए। डर्ट पे बाहर की तरफ लगी होगी, तभी ये बाहर की तरफ फ्लाई ऑफ कर रहा है। इस पे सेंट्रीफ्यूगल शायद ऊपर लगी होगी, ताकि सर्कल से रेडियली आउटवर्ड, ताकि शायद इस पानी के वेट को बैलेंस कर गई होगी। इन बच्चों के जो वेट नीचे लग रहे थे, शायद ये सेंट्रीफ्यूगल रेडियली बाहर लग गई होगी, ताकि उस वेट को बैलेंस कर लिया होगा। और इस गाड़ी के ऊपर ये फोर्स बाहर को लग रही होगी, रेडियली आउटवर्ड, ताकि ये शायद स्किड कर रही होगी। सो एक बात तो मैंने आपके जहन में बिठा दी है कि ये जो फोर्स होती है वो कैसे लगती है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। सो कब लगती है? whenever there exists a relative angular motion। राइट जी, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। और नाम ना मैंने कुछ ब्रेकअप करके लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम तो हमने सीखा ही था, सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, सेंटर की तरफ लगती है। और सेंट्रीफ्यूगल जो होती है उसको बोलते हैं सेंटर फ्लिंग फोर्स। सेंटर फ्लिंग, सेंटर से बाहर को भाग रही है, इट्स अ फ्लिंग फोर्स, बाहर को लगती है। Actually it's coming from the Latin word where the centrifugal means century, मतलब center plus fugere, F-U-G-E-R-E, और इसी का मतलब होता है तो फ्ली, भाग जाना। तो सेंटर छोड़ के भाग जाना बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। करेक्ट है जी। One of this is fictitious, of course, आपको पता चल चुका है, that is supposed to be which one? The centrifugal force। मजेदार फोर्स, मजेदार फोर्स। राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, यहां लगेगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगी? बाहर को लगेगी। डील कैसे करना है क्वेश्चंस को? हाउ आर वी सपोज टू डील विद द क्वेश्चंस? तो या तो सेंट्रीपिटल से या सेंट्रीफ्यूगल से। आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर सेंट्रीफ्यूगल क्रिएट करती है, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन न्यूटन लॉ से बनाते हैं, इसलिए हम मेंशन क्वेश्चंस में सेंट्रीपिटल करते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल कभी टेंशन फोर्स से आ सकती है, लास्ट लेक्चर में करा, नॉर्मल से आ सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ग्रेविटेशन से। रियल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकती है। तो सेंट्रीफ्यूगल तो नॉन न्यूटन है, तो इसका मतलब फिर हमें इजाजत नहीं होती है कि एग्जैक्टली हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में ज्यादा लिखें अगर हम न्यूटन लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसी से आती है। अभी क्या चक्कर है उस बात को समझते हैं। सो बात ऑलरेडी मैंने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम से समझानी थी, तो इस डायग्राम से समझा रहा हूँ। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम में, ध्यान से देखिएगा। ये ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, इज आउटसाइड द फ्रेम, इज आउटसाइड द फ्रेम। तो इसको कोई हक नहीं है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्लेन करे। ही कैन नॉट, एक्चुअली ही कैन नॉट। व्हाई ही कैन नॉट? क्योंकि उसके जीवन में वो फोर्स ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ना, वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है। हु इज ही? ही इज एन इनर्शियल ऑब्जर्वर।
तो सूडो लगा ही नहीं सकता, और सेंट्रीफ्यूगल तो सूडो फोर्स है, तो क्योंकि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो ये सूडो फोर्स से क्वेश्चन को नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन किससे करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स से। तो ये क्या बोलेगा, सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि ऑब्जेक्ट इस टेबल के ऊपर घूम सकता है, टेबल के साथ में घूम सकता है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। ये उसकी रीजनिंग होगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल के साथ साथ घूम रहा है, टेबल के साथ साथ, टेबल तो घूम ही रही है, टेबल तो घूम ही रही है, और ये ऑब्जेक्ट भी साथ साथ में घूम रहा है, तो कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी सेंटर की तरफ। इस मामले में कौन सी लग रही होगी, सोचते हैं। तो हमने सोचा कि यार टेबल पे चढ़ के फील करता है, तो हमने टेबल पे चढ़ के फील करा, सो वी जस्ट जम्प्ड ऑन द टेबल, हम यहाँ पहुंच गए। अब हम क्या बन गए, अब एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गए। क्यों, हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, क्योंकि ये तो रोटेट कर रही है, इसकी ओमेगा है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वो अलग बात है कि हम उसको फील ही नहीं कर रहे थे क्योंकि हम बाहर बैठे हुए थे। अब हम फ्रेम पे चढ़ गए, अगर हम फ्रेम पे चढ़ गए तो हमारे ऊपर अब क्या लगने लगी, सेंट्रीफ्यूगल। हमने फील करी, बिल्कुल करी। हमें कहाँ लगी, इधर लगी, हमें लगी, हमें थोड़ा संभलना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएंगे ऐसे पीछे। इसका मतलब हमारे पे सेंट्रीफ्यूगल लगी, तो हमने फिर फील करा ना कि इस पे भी तो लगी होगी। पहले तो फीलिंग ही नहीं थी क्योंकि हमारे पे तो लगी नहीं, तो अपन कैसे फील करेंगे। लेकिन जब हम फ्रेम के ऊपर चढ़ गए तो हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगी, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे। फ्रेम तो नॉन इनर्शियल है ही, क्योंकि वो तो एंगुलर स्पीड उसकी है, तो हमारे को बाहर लगी। तो हमने फिर डिसाइड करा कि जब हम इस ब्लॉक की फ्री बॉडी बनाएंगे तो बताएंगे जी कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगी, कहां लगी, रेडियली आउटवर्ड। सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस। तो ये तो फ्लाई कर जाएगा, ये तो फ्लाई कर जाएगा बाहर को, पर ये तो कर नहीं रहा। अरे क्यों नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई, इसका मतलब कोई फोर्स लग रही है जो सेंट्रीफ्यूगल को अपोज कर रही है। तो कौन सी फोर्स है, एमजी, एमजी कैसे हो सकती है, वो तो नीचे लग रही है। नॉर्मल, नॉर्मल कैसे हो सकती है, वो तो ऊपर लग रही है। टेंशन से धागा तो बंधा नहीं है, तो फिर अरे वही फोर्स, वही वाली, कौन सी वाली, अरे वो सबसे लेजी होती है, तो पहले सबको मौका देती है कि सारी लग जाए फिर मैं लगूंगी। कौन सी वाली, नाम नहीं आता, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन। देखेगी पहले कि धागा लगाओ तो धागे लगा ले, टेंशन लगा ले, वो काम धाम कर ले, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कर ले, एमजी कर ले, कोई और कर ले, पर जब किसी से काम नहीं बन पा रहा तो मजबूरी में उसको लगना पड़ेगा। अगर वो हो तो इसका मतलब ये टेबल रफ होनी चाहिए, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर साथ साथ नहीं घूमेगा। So then the friction is going to act towards the center. अब बोलोगे सर क्यों, because the friction, my dear, hates slipping and there is a slipping outwards. Centrifugal force क्या करती है, skid करवाती है, slip करवाती है, कहां पे, outwards। तो क्योंकि उसका आउटवर्ड स्लिप करवा रही है तो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग एंड हेंस इट एक्ट्स इनवर्ड्स एंड विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जवाब इस ऑब्जर्वर का है। समझ आ रही है, अब इसको पता चल गया कि फ्रिक्शन है, नहीं तो उड़ जाता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको पता चल गया ना फ्रिक्शन होनी चाहिए, नहीं तो उड़ जाता। इसके जूतों में भी तो फ्रिक्शन होगी, जो खड़ा है यहाँ पे, इसके जूतों में अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, इसको भी तो फ्रिक्शन लग रही होगी यहाँ पे, तभी तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस है, तभी तो आराम आराम से साथ में चलेगा। एक्चुअली तो स्टेशन ही है ना उसके डिस्ट्रिक्ट में, पूरा टेबल घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। अम्यूजमेंट पार्क में इसको रोटर बोलते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में होता है ये रोटर। अब इसको नॉलेज आ गई कि फ्रिक्शन है, अब ये बाहर उतर के आंसर दे देगा, पर बाहर उतर के ये फ्रिक्शन तो बताएगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं बताएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल को नहीं बताएगा, बता ही नहीं सकता, हक खत्म, क्योंकि खुद को फील ही नहीं हो रही, क्योंकि खुद तो बाहर आ गया। जब खुद को नहीं फील हो रही तो वो ये कैसे बताएगा कि उसको लग रही। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब इस सॉल्विंग के दो रूप हैं। सो दो तरीके से, पहला, दिस इज फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम सॉल्विंग। सो इनर्शियल फ्रेम सॉल्विंग में ये बंदा क्या बोलेगा, दैट द फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सूडो का नाम ही नहीं ले सकता, सेंट्रीफ्यूगल का नाम ही नहीं ले सकता, बिकॉज इज एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। सो द फ्रिक्शन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, ये इसका आंसर होगा, और लिख देगा आंसर दैट एफ इज सपोज टू बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, खत्म। और जहां तक बात आती है भाई किसकी, इस वाले ऑब्जर्वर की, बढ़िया वाला मेरे पसंद का ऑब्जर्वर है,
ये क्या बोलेगा, ये आंसर देगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो अलग कलर से लिख लेते हैं, किससे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ये भाई साहब आंसर देंगे और ये बोलेंगे जी ऐसा है, जो फ्रिक्शन थी इट बैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पूरी रीजनिंग दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही थी क्योंकि खुद फील कर रहा था उस बात को, खत्म। तो लिखेंगे कैसे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कितनी होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो आंसर तो सेम ही आएगा, पर यहां पर हमने क्या यूज करा, सेंट्रीपिटल, which was acting towards the center. So this force was acting towards the center and providing the necessary centripetal force for the circular motion. और नॉन इनर्शियल फ्रेम से आंसर क्या हुआ कि सूडो बाहर लग रही थी धक्का और फ्रिक्शन अंदर लग गई और दोनों बैलेंस कर गए। इतनी फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस कर जाए। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन। सो बहुत क्लियर है जी। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, कॉइन भी रख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, और ये टेबल जो है जिसको टर्न टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्न टेबल, ये रोटेट करी ओमेगा से। तो हमारे हिसाब से इसके ऊपर क्या लगनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ सूडो फोर्स। कहाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर, आर क्या है, रेडियस, जिस सर्कल में ये इसके साथ में घूम रहा है। और ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है जो कि इसके ऊपर बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की सूडो बाहर लगेगी। तो फिर वो बता रहा है जी देखो इसको बचाने के लिए अंदर को आ गई फ्रिक्शन, जो कि कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड द फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। और ये बंदा उतर के जब यहाँ पहुंच गया, आपकी और मेरे जैसा हो गया, कौन ऊपर चढ़ के अपने आप के ऊपर सूडो लगवाएगा, है ना। तो फिर वो क्या आंसर देगा, देखो सिचुएशन सेम है, और ये बंदा क्या आंसर देगा कि देखो ऐसा है कि जो फ्रिक्शन तो लग रही है और वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो फिर लिख लेगा, फिर बोल देगा एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। पर इस बार देखो इक्वेशन देख के कोई नहीं बता सकता, पर हाँ डायग्राम देख के बता सकते हैं कि इस बार आंसर किससे था, सेंट्रीफ्यूगल से, और अब जो आंसर दे रहा है वो किससे दे रहा है, सेंट्रीपिटल से। यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने रिपीट कर दिया। सो इट इज ऑल अबाउट अ चेंज इन द ऑब्जर्वर। मेरे हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो हमें सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखती है, होती है, फील होती है। अलग की बात है कि कोई ये नहीं पता चल रहा कि कोई फिजिकली हमारे पे लगा रहा है, लेकिन होती है। और कब कब होती है, जब तक रिलेटिव ओमेगा होगी, फ्रेम रोटेटिंग होगा, ये फोर्स लगेगी। इस वजह से जब हम मनाली, डलहौजी जाते हैं तो वाइंडिंग रोड्स होती है, रोड एक्चुअली मूव नहीं करती है, लेकिन हम मूव करते हैं उसके रिलेटिव ओमेगा से, तो हमारे ऊपर भी आउटवर्ड ये फोर्स लगती है। तो हम इवेसिव एक्शन करते हैं, हम स्टीयरिंग को ऑपोजिट घुमाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल वहां लग रही होती है, सेम काम फ्रिक्शन कर रही है। कि जो स्किडिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, इस तरफ हो रही है, किस तरफ, राइट को, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, इनवर्ड लग रही है। नेसेसरी फ्रिक्शन होनी चाहिए, इतना म्यू होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे। ग्रेट जी। राइट, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में क्या क्या सीखा एक बार मेंशन कर लेते हैं। इट्स एन इमेजिनरी फोर्स एक्सपीरियंस ओनली इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, इट्स अ सूडो फोर्स बेसिकली। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये लॉन्ग द रेडियस लगती है पर अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, सीख लिया हमने। डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल, और वैल्यू बता दिया हमने, mv स्क्वायर बाय आर। और कब होती है, हमेशा रोटेटिंग बॉडीज में होती है। सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए। जहां तक दोनों में डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे ऊपर सवाल बना के दिखाया मैंने। कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जहां तक मामला है, इट इज द टेंडेंसी टू शिफ्ट आउटवर्ड्स, है ना, कि बाहर की तरफ वो स्लिप करेगी। सो एक टेंडेंसी है, एक आइडिया है, कोई ना कोई बचा लेगा, पर टेंडेंसी थी तभी तो बचाएगा। पर टेंडेंसी नहीं थी बाहर स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन काहे को लगेगी, है ना। At every instant it is directed radially inwards, centripetal, और ये radially outward। पता है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। और बाकी एक रियल फोर्स है और दूसरी वाली सूडो फोर्स। सिंपल। ये डायग्राम आपकी यादें फिर से ताजा कर देगा। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लग रही है, रेडियली अवे, सो फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग इनवर्ड्स, ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल को एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कर ले, ताकि वो अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन करे। हमेशा लगनी चाहिए, यहाँ पहुंचेगी गाड़ी तो फ्रिक्शन इधर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, हर इंस्टेंट पे वो फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए ताकि वो उसके पूरे सर्कुलर पाथ को मेंटेन करवा पाए। तो रीजन क्या है,
इसके सर्कुलर पाथ को मेंटेन होने का सर्कुलर ट्रैक इज मेंटेन्ड। क्यों मेंटेन है? क्योंकि नेसेसरी फ्रिक्शन है। स्मूथ सरफेस होता फिर नहीं कर पाता, तो बिल्कुल नहीं कर पाता, पर अब कर पा रहा है, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे वो तो कहाँ लगती है, वो तो टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? अरे वो उसको सर्कल में घुमा रही है। सो रीजनिंग दोनों तरीके से आ गई है। चलो फिर आगे बढ़े। ये सारे डायग्राम्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको, मैंने दोबारा बनाए थे कि आपको समझ में आए। एक और फोर्स होती है जिसको मैं बस टच करके छोड़ूंगा, बस दोबारा बोल रहा हूँ, बस टच करके छोड़ूंगा। इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द कोरियोलिस इफेक्ट। अब ये क्या होता है कोरियोलिस इफेक्ट? ये एक्चुअली ना हमारे अर्थ के वेदर में बहुत इफेक्ट क्रिएट करता है, अर्थ के वेदर में। अभी कोरियोलिस इफेक्ट है क्या एग्जैक्टली आप इस एनिमेशन को अगर देखें तो शायद आपको समझ में आए। दोबारा देखो, दोबारा देखो कि क्या है। वो जो पार्टिकल है सेंटर पे, ऐसा लगा कि वो सीधे आए ऊपर वाले डायग्राम से, तो नीचे वाले डायग्राम से देखोगे तो जब एज पे पहुंचा तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन पाथ से नहीं गया है, वो एक्चुअली में किसी कर्व पाथ से गया है। पर ये किसको दिखेगा कि वो कर्व पाथ से गया है? दैट इज एन ऑब्जर्वर जो कि उस फ्रेम पे प्रेजेंट हो, उसको ऐसा दिखेगा। इस इफेक्ट को देखना इतना आसान नहीं है, मतलब फील करना इतना आसान नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल के बिहेवियर को फील करना आसान होता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके सेंट्रीफ्यूगल के बनते हैं। और ये आर्टिकल उतना ज्यादा हमारे लेवल्स में टच नहीं होता, पर कहीं ना कहीं मेंशन हो जाता है, इसलिए मैंने समझा दिया। अब क्या समझाया सुन लेना बात, कभी कोई स्कूल लेवल पे कहीं नहीं पूछा जाएगा ये आर्टिकल, है ना। सुन लेना, पर नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये जो बॉल है, ध्यान से देखना, ये जो बॉल है ये वाली, है ना, ये वाली रेड से बनाता हूं, ये वाली जो बॉल है, अब ये यहां से छोड़ दी हमने। अब क्या कर रहा था? फ्रेम रोटेट कर रहा था, तो फ्रेम तो जी रोटेट कर रहा था, और ये बॉल हमने यहां से रिलीज कर दी, ठीक। तभी किधर जाएगी अगर हमने इसको रोटेट कर दिया? मैंने इसको छोड़ दिया हमने, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड ऑब्जर्वर के नहीं। फॉर एन ऑब्जर्वर हु इज हियर, तो यहां पर एक बंदा भी बना लेते हैं। तो क्या हुआ? ये बंदा तो यहां पहुंचा, पर ये बॉल यहां पहुंच गई, ये बंदा यहां पहुंचा, ये बॉल यहां पहुंच गई, ये बंदा यहां पहुंचा, ये बॉल यहां पहुंच गई। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो, इस बंदा जब यहां पहुंचेगा तो ये फोर्स इधर लग रही है, हमेशा लग रही है। कैसे? इट इज एक्टिंग साइडवेज इन द सेंस, इफ दिस इज अ पार्टिकल, तो एक तो हमने बता दी कि सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगती है? दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल होती है। सो देयर इज अ साइडवेज फोर्स इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ इस वेलोसिटी जो इस पार्टिकल को गेन हो चुकी है। क्यों गेन हो चुकी है ये हमें पता है कि अगर आप इसके ऊपर प्लेस करोगे इस पार्टिकल को, जो कि खुद ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इस पार्टिकल को जो स्पीड मिलती है दैट इज आर ओमेगा। ये लास्ट लेक्चर में डिराइव करा हमने, जिसको स्पीड मिल चुकी है। तो ये हो सकता है कि इस फ्रेम को छोड़ के ऐसे जाए, तो इसको इसका जो पाथ है, किसको? इस ऑब्जर्वर को जो कि खुद इस फ्रेम के ऊपर है, उसको इसका पाथ कैसा दिखेगा? सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल से डिफाइन नहीं होगा, कर्व पाथ दिखेगा। ये इसकी आंखों से पीछे छूटता जाएगा, ये देखो, ये इसकी आंखों से पीछे छूटता जाएगा, पीछे की तरफ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। व्हाट इज अ कोरियोलिस फोर्स? व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ रोटेटिंग फ्रेम। और इसकी वजह से क्या होती है? देयर इज अ साइडवेज डिफ्लेक्शन, साइडवेज डिफ्लेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल से क्या होती है? आउटवर्ड पुश। ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। 99% क्वेश्चन हमारे इससे ही होंगे। और ये जो फोर्स है, जो कोरियोलिस फोर्स है, वो लगती है साइडवेज। सो साइडवे डिफ्लेक्शन होती है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है। सो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं, उनमें एक डिफ्लेक्शन आ जाती है साइडवेज। और वो जो साइडवेज, बाहर की तरफ नहीं,
साइडवेज डिफ्लेक्शन आ जाती है। अर्थ रोटेट कर रही है तो साइडवे डिफ्लेक्शन आ जाती है, जैसे मॉनसून मूवमेंट्स, वेदर मूवमेंट्स होते हैं। इसे बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, CORIOLIS। व्हाट इज दिस? अ साइडवे डिफ्लेक्शन इज काइंड ऑफ अ सूडो फोर्स, क्योंकि ये फिर से रोटेटिंग फ्रेम में ही लगती है और उसी ऑब्जर्वर को फील होती है जो कि खुद इस फ्रेम के ऊपर होता है, उसी को ये फील होती है। तो मैंने टच कर दिया आर्टिकल, टच कर दिया है। इसके क्वेश्चंस नहीं हम करेंगे यहाँ पे, हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जो कि कहाँ लगती है? रेडियली आउटवर्ड, है ना। आगे तो आगे करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रिएट करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है क्या? द क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग required to keep the particle, जो भी पार्टिकल है या पत्थर है जो भी है, moving in a circle of radius r with angular speed ओमेगा। ये क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेरे को ये समझ में आया कि क्या होगा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस, और उसको बचाने के लिए कोई ना कोई फोर्स सेंटर पे आएगी, नहीं तो ये घूम नहीं सकता है भाई। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर लगेगी, सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर लगेगी उससे स्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा, इसमें स्ट्रेच क्रिएट होगा, लगेगा ना स्ट्रेच। तो यहाँ पे वो स्प्रिंग थी ना, दो स्ट्रेच फील होगा, तो स्ट्रेच जब फील होगा तो क्या होगा? वो इसमें टेंशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा? स्ट्रेच फील होगा, तो टेंशन लगेगी। कहां लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। और क्या होगा? अरे सर ये तो पाथ को मेंटेन कर रहा है, ना इधर गया ना इधर गया, अपने पाथ को मेंटेन कर रहा, तो दोनों फोर्स बैलेंस करनी चाहिए। सो हेंस द T शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बड़ी वाली यस। जैसे ये देखो, सीरियस इसकी लेंथ है, अब मैं इसको पकड़ के अगर घुमाऊं, देखो घुमाया, ये देखना, आप घर में कर सकते हैं, इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, करके देखना। छोड़ा, देखो रेडियस कम हो गया, मतलब इसकी लेंथ कम है, क्योंकि स्प्रिंग है ना, एक्सपैंड कर सकती है, तो स्ट्रिंग में दिखता नहीं है, ऐसा घुमाया मैंने, इसका रेडियस ऑलमोस्ट डबल सा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ना, तो इसके हर पार्टिकल के ऊपर क्या लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बार को लग रही है, ताकि तो इसका रेडियस बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना सा है ये, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो दिखेगी इसमें, स्ट्रिंग है तो दिख नहीं रही थी आपको, पर स्ट्रेच तो है, और स्ट्रेच की वजह से क्या आती है? टेंशन आती है, और कहां लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, और ये बैलेंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फिर एक बच्चा आएगा, सर सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, सर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन करो। मैंने कहा ओके, वो तो और सुख है, पर रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग क्या है? तो भाई देखो, जब तक सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगी, जब तक टेंडेंसी बाहर को जाने को नहीं होगी, तो फिर स्ट्रेच नहीं आएगी, और स्ट्रेच नहीं आएगी तो टेंशन नहीं आएगी। और एक बंदा है वो बोल रहा है सर टेंशन प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, काहे को, व्हाई, व्हाट्स द नीड? पहले नीड तो एक्सप्लेन करो। नीड क्या है? कि सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रही थी, नहीं तो ये तोड़ के रस्सी बाहर भाग जाता, लेकिन टेंशन आई और सफिशिएंट थी, जिसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करा, ताकि ये अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन करे। सो हेंस दैट T becomes equal to m omega square into r, और r बेसिकली जो है ना यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है, सो देयरफॉर T becomes m omega square L। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड such that the string does not break, और साथ में गिवन होगा द मैक्सिमम टेंसाइल strength of the string is T0। तो सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन लगी। सो T0 क्या है? m ओमेगा स्क्वायर इनटू L। L तो बता दिया मैंने, रेडियस के बराबर है, रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसमें। तो ओमेगा यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्लियर है, दैट T इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा इंक्रीज करोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगी, तो उसकी काबिलियत होगी ना, एक लिमिटिंग होगी ना, उसके बाद तो ब्रेक कर जाएगी। तो उस मैक्सिमम टेंशन जो वो बियर कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कितनी? T0 है, यहाँ से आपकी ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज T0 अपॉन m into L is omega max square, and therefore the omega max should be equal to as root of T0 upon m into L। Simple, very simple।
चलो, अब ये एक अरेंजमेंट होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कुछ है नहीं, हम उसको क्वेश्चन की तरह फील करा रहे हैं। देखो, ये सेम स्ट्रिंग है जो कि यहाँ से ऐसे पास कर रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इस वेट को बैलेंस करेगी। सो टी बिकम्स इक्वल टू एम जी, यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। जो भी इसका मास होगा, मान लो कि ये कैपिटल एम है, मान लो कैपिटल एम है, तो ये टी इक्वल टू कैपिटल एम जी हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे टेंशन लगेगी, वो इस सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगी। और वो सेंट्रीफ्यूगल कितनी है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। वो आर किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो घूम ही रहा है ना। सो हेंस यहां से टी क्या बनेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, और फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, दैट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो कैपिटल एम जी आपको पता है, क्योंकि कैपिटल एम आपको पता होगा, जो भी वेट आपने हैंगर पे रखा होगा, तो आपको जितनी सेंट्रीफ्यूगल है उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल, और वही सेंट्रीपिटल के बराबर है। So this is an apparatus which can check the magnitude of the centripetal force. So indirectly आपने centripetal force की magnitude को check in कर लिया। और अगर कहीं आपको radius पता है, वो तो आप नाप ही सकते हैं length of the string को, तो कितनी ओमेगा थी वो मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट है। और ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला यही होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ही होता है। ये वेरीफाई भी हो सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना आर्टिकल लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? सेम अपैरेटस है, उसके अंदर हमने नीचे से यहाँ से कोई अगर टेबल थी वो हटा दी है। मतलब टेबल हटा दी है, मतलब समझाता हूँ। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास में ये अरेंजमेंट इस टेबल के ऊपर हो, इससे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये इसके ऊपर इस तरीके से घूम रहा है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से पास आउट करके इस वेट से कनेक्टेड थी। दिस इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। हम अगर एक टेबल को हटा दें और इस पॉइंट को फिक्स कर दें, इस पॉइंट को फिक्स कर दें, तो ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, राइट। सो पॉइंट इज फिक्स, और फिर टेबल हटा दी, तो ये वाला जो पार्टिकल है ना, इस पे mg नीचे लग रही थी, mg नीचे, तो उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा था? भाई आपने ये तो देख लिया कि हॉरिजॉन्टली सेंट्रीफ्यूगल को टेंशन ने बैलेंस करा, पर इसका वेट कौन बैलेंस कर रहा था? उसका वेट के लिए ऊपर कोई फोर्स होनी चाहिए। वो कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द टेबल। तो वो इसके वेट को बैलेंस कर रही थी, ताकि तो वैसे घूम रहा था। लेकिन फिर हमने टेबल ही हटा दी। जैसे ही टेबल हमने हटा दी तो क्या होगा, ये एन गायब हो जाएगी। सो एन बिकम्स जीरो, कोई टेबल ही हटा दिया आपने, तो mg उसको नीचे लेकर आ जाएगी। सो mg नीचे की तरफ लग गई इसके ऊपर, तो वो हल्का सा नीचे आ जाएगा। घूम अब भी रहा है, तो ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट घूमेगा, तो ये इस तरीके से अब इस सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, लाइक दिस। ये सेम स्ट्रिंग है, ये वाली सेम स्ट्रिंग है जो कनेक्टेड है ऐसे, ये जो यहां से टेंशन इसकी m1g के बराबर आएगी, पर यहां पे टेंशन अब कितनी आएगी ये हमें चेक करना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टेबल हटा दिया आपने, तो नॉर्मल गायब हो गई है, तो सारा दामोदार टेंशन पे आ गया। एक्चुअली में यहाँ पे दो फोर्स थी, एक तो नॉर्मल और एक टेंशन। तो नॉर्मल क्या कर रही थी? वेट को संभाल रही थी। टेंशन क्या कर रही थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभाल रही थी, या आपकी लैंग्वेज में टेंशन वाज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे जब नॉर्मल गायब होगी तो सारा दामोदार टेंशन पे आ गया, तो टेंशन को ही दोनों रोल करने पड़ेंगे। क्या? उसका एक कंपोनेंट वेट को संभालेगा और उसका दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभालेगा। सो ड्यूअल रोल हो गया टेंशन का, क्योंकि नॉर्मल साथ छोड़ दीजिए अपना। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो एक इंस्टेंट पे इसका डायग्राम हमने बना लिया। इस इंस्टेंट पे तो स्ट्रिंग में टेंशन है, कितनी है? टी। एंगल विद द वर्टिकल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। टेंशन को रिजॉल्व करा, ऊपर एक कंपोनेंट बना टी कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट बनता है पता है हमें, जहां पे एंगल कंटेंट होता है कॉस। दूसरा कंपोनेंट बना टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज टी साइन थीटा। हैप्पीली लिख सकते हो, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज द सर्कल इज दिस वन। कौन सा सर्कल है? दिस अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन सा सर्कल है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल।
तो जितने भी सवाल हम बना रहे हैं अभी वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सर्कल के हैं। mg कहाँ लग रही है? नीचे। अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो आप बता सकते हैं सर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही है, अवे, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। नहीं तो आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे आपका दिल करे, दोनों चलेगा। So that T sin theta is equal to either balancing centrifugal, either providing centripetal, मर्जी आपकी। दोनों ही लहजे में हम क्या लिख सकते हैं? That is m omega square into r. What is r? R is the radius of this circle. और vertical side से it's T cos theta that is equal to mg, ये vertical side से। आप दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। So t cancel हो जाएगा, you will get sin theta upon cos theta, tan theta will be equal to m into omega square r upon mg. m cancel out हो जाएगा। मन करेगा tan theta की इक्वेशन लिख लें यहाँ पे, पर एक चेक है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हो सकता है रेडियस गिवन हो और 99% नहीं गिवन होगा, तो फिर क्या गिवन होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज एल इन दिस? दैट इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो, ये साइड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस ट्राइंगल से यू कैन फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन आर एंड एल क्वाइट इजीली। दैट इज sin theta is supposed to be r by l, so therefore r becomes l sin theta. तो आपको इंफॉर्मेशन किसकी है? एल की। उससे आपने क्या फाइंड करा? आर। और अब आर को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी हैव sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह l sin थीटा बाय जी। आर को सब्स्टिट्यूट करा है तो उससे sin थीटा कैंसल्ड है, ओमेगा स्क्वायर बन जाता है g अपॉन l cos थीटा, एंड देयरफॉर ओमेगा बिकम्स root of g upon l cos theta. That's the value for omega. ओमेगा को क्या बोलते हैं? ये लगातार घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ओमेगा को दो टर्म से बोला जाता है, वन इज नोन एज एन एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हम इसी टर्म को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ज्यादातर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम तब यूज करते हैं जब हम ऑसिलेशंस का क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर ओमेगा तब यूज होती है एज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब हम ये बोल रहे हैं कि वो घूम रहा है लगातार एक ही डायरेक्शन में, तब हम उसको एंगुलर स्पीड की तरह यूज करते हैं। दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं साथ में, है एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का मतलब सेम है। तो दोनों का मतलब है क्या? फॉर्मूला तो बन गया ओमेगा का, दोनों का मतलब है क्या? देखो, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डी, ये है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपके पास में कोई सर्कुलर पाथ था और जो पार्टिकल है वो यहां से यहां गया, तो ये एंगल डिस्क्राइब हुआ, उस एंगल को क्या बोला? डेल्टा थीटा। कितने समय में? डेल्टा टी में। तो किस रेट से हुआ, उसको एंगुलर स्पीड बोल दी। अब मान लो ये पार्टिकल पूरा चक्कर काट गया, क्या करिए? पूरा चक्कर काट गया। तो अगर ये पूरा चक्कर काट लेगा ये पूरा, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 2 पाई, और फिर ये जहां से शुरू हुआ था वहां पे वापस आ जाएगा। तो उसमें जितना टाइम लगेगा वापस आने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। फिर दोबारा जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर वापस आएगा। रिपीटेड मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, तो हर पीरियोडिक मोशन का क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। सो कैसे लिखेंगे? द एंगल कितना है? 2 पाई, द एंगल एट द सेंटर, और कितने टाइम में? कैपिटल टी में। सो ओमेगा बिकम्स 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कम समय है तो कम एंगल डिस्क्राइब करेगा, पूरा समय मिला कैपिटल टी, तो पूरा सेंटर पे एंगल कितना है? 2 पाई। एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी क्या है? टाइम पीरियड। 1 upon time period is defined as frequency. So hence you can also write omega as 2 pi f. तो ओमेगा क्या है इस सेंस में? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है, क्योंकि f क्या है? फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ में क्या है? 2 पाई। 2 पाई क्या है? एंगल, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या? और फ्रीक्वेंसी मतलब यूनिट्स आर हर्ट्ज, या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर रेवोल्यूशंस पर सेकेंड।
आरपीएस, रोटेशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर हर्ट्स, मतलब 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 रोटेशन पर सेकेंड और 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कई बार आरपीएम गिवन होगा, सो 1 आरपीएम कितना हो गया, दैट इज अ रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 60 यूज कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, किसमें डाल दोगे, आरपीएस में डाल दोगे। सो देन जब आपको वैल्यू फ्रीक्वेंसी की मिल जाए, लेट्स से 50 हर्ट्ज गिवन है, उससे आप ओमेगा निकालेंगे, कैसे, 2 पाई इंटू एफ। सो लेट्स से द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, so the value for the omega will be 2 pi into 50, that will be 100 हर्ट्ज। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आएगी यूनिट्स। डेल्टा थीटा मतलब क्या हो गया, एंगल, एंगल किस में नापते हैं, रेडियन, और टाइम किस में, सेकेंड। सो ओमेगा की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। सो नाउ दिस ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड। ये डिफरेंस समझाना था आपको एफ और ओमेगा में। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों की यूनिट फर्क है। दैट्स 100 रेडियंस पर सेकेंड, सिंपल। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हमने, इसलिए हमने इस चीज को बिल्कुल तसल्ली से कर लिया। चलो, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे कोनिकल पेंडुलम का, तो पहला मुद्दा कि भाई इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते ही क्यों हैं, क्योंकि जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा कि आपको इंप्रेशन देगा फॉर अ कोन। शायद मेरे पास एक जीआईएफ है, सो चेक कर लेते हैं। ये देखो, as it is moving, it is going to give you an impression of a cone to be, एक्चुअली में एक इंस्टेंट पे वो एक ही जगह पर है, but then as a cone, ये तेजी तेजी से घूमेगा, जैसे पंखे का इंप्रेशन आता है ना डिस्क का, उसी तरीके से इसका इंप्रेशन क्या आएगा, एज अ कोन। और पेंडुलम क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है, इसका टाइम पीरियड होगा, क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, इस वजह से मिला जुला के इसका नाम क्या दिया, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि वो कोन डिस्क्राइब करेगा और उसका टाइम पीरियड है पीरियोडिक मोशन का। तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्मॉल टी लिख लेते हैं टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं स्मॉल टी लिख लूं, देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन मत करना, चेक करा देता हूँ। कैपिटल टी 2 बार यूज कर लिया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी क्या था, टेंशन था जो पहले हमने यूज करा है, और अभी यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड है। वैसे लिखा है मैंने वहां पे, पर उसको टी नॉट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो रिवाइज करते समय। तो ये टी नॉट यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, और ऊपर जो टी हमने यूज करा था वो टेंशन है। तो ये एक सिंबल तो कई जगह यूज हो जाता है ना। तो टाइम पीरियड जो टी नॉट है वो कितना है, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहीं से ओमेगा कितना है, 2 पाई अपॉन टी नॉट। सो टी नॉट कितना हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको रिवर्स कर लो, दैट इज L cos थीटा बाय g। दैट्स द वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है और इंप्रेशन किसका दे रहा है, कोन का दे रहा है। सो इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ दिस। कहीं क्वेश्चन कुछ और पूछ जाए आपसे, टेंशन पूछ जाए, अच्छा तो इसको यूज कर लो। व्हाट्स अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, आसान है जी, टी साइन थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। क्या है ये, r, पर r की वैल्यू तो ढूंढ लिया आपने, L साइन थीटा, सो इनटू L साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, सो t becomes m ओमेगा स्क्वायर L, सिंपली डन। या फिर इस वाली इक्वेशन से t cos थीटा इज इक्वल टू mg, सो t कैसे मिलेगा, दैट्स इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। जिस तरीके की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो उस हिसाब से। तो सेम आइडिया ऑफ द कोनिकल पेंडुलम कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज। तो ये सारे फॉर्मूले टेंशन के हो गए। वो इंफॉर्मेशन भाई देखो, ओमेगा गिवन है, एल गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अगर आपको थीटा गिवन है, मास गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। तीसरा, तीसरा भी है क्या, ये देखो, पहली क्वेश्चन क्या थी, टी साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरी थी टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। मान लो आपको रेडियस गिवन है, ये गिवन है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड। तो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 2, एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस। सो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा will be equal to m omega square r का whole square plus mg का whole square. That become t square as m square omega 4 r square plus m square g square. सिंपल स्क्वायर एंड ऐड करा, कुछ नहीं करा। सो t कितना आ जाएगा, रूट ऑफ दिस वैल्यू, m बाहर आ जाएगा, ओमेगा 4 r स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉर द टेंशन। अब ये आप बोलोगे सर सारे रट ले, बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल नहीं रटना, बस एक बार खुद दोबारा बना के देख लेना और जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज कर लेना इक्वेशन बना के। एक कौन सी इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि देखो यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं, नॉर्मल है नहीं, कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, एक इकलौती टेंशन बचती है, उसको डबल रोल करना पड़ रहा है। एक कंपोनेंट उसका वेट को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। वहीं से सारे सवाल बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। पूछा एक ही जाएगा भाई, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम पीरियड, या फिर टेंशन, ना एक ही चीज पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे, एक ही पूछा जाएगा, पर हमने तो सारे करने हैं ना, तो हमने सारा तामझाम निपटा दिया इसका। दैट्स अ कोनिकल पेंडुलम। क्यों कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं वो भी बता दिया। जिसका भी पीरियोडिक मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है। और कोनिकल इसलिए क्योंकि वो इंप्रेशन एक कोन का देगा, इस वजह से। चलो ये देखो बड़े सारे मैंने ये बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, ये सारे टर्न टेबल्स, ऑल ऑफ दीज आर टर्न टेबल्स। टर्न टेबल क्वेश्चन मुझसे पूछता है, जैसे ग्रामोफोन का क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस क्लास में। ग्रामोफोन की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसको हम कहाँ रखें ताकि वो स्लिप ना करे। इसका क्या लॉजिक है, मान लो इस पार्टिकल को आपने यहां रखा तो ये सर्कल बनेगा, तो इसके ऊपर जो सूडो होगी वो लगेगी m ओमेगा स्क्वायर इंटू जितना रेडियस है, कितना r1, इतनी। ओमेगा सेम है लेकिन रेडियस अभी कम है तो सूडो कम लगेगी, तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कम है। अगर ये इस सर्कल में आ जाता है तो यहाँ पे रेडियस बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी होगी, r2 होगी रेडियस, यहाँ पे ओमेगा सेम है तो सूडो की वैल्यू इंक्रीज होके m ओमेगा स्क्वायर r2 हो जाएगी, तो स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जितना बाहर की तरफ रखा होगा, यहां देखो, जितना बाहर की तरफ रखा होगा उतनी स्लिपिंग की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। तो कोई एक पोजीशन होगी क्रिटिकल, अगर उसके अंदर रखा होगा, अंदर वाले रेडियस पर रखा होगा, तो ये कॉइन ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। उसको हम डिफाइन कर लेते हैं एज द क्रिटिकल रेडियस। क्या लिख देते हैं, क्रिटिकल रेडियस आरसी। तो हमारा क्वेश्चन है इस आरसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो बहुत आसान है जी, देखो नॉर्मल ऊपर लगेगी, mg नीचे लगेगी, धागा है नहीं तो फ्रिक्शन ही बनती है हमारा सहारा। भाई सेंट्रीफ्यूगल लग गई बाहर, है ना, क्योंकि कर रहा था ये रोटेट, तो सेंट्रीफ्यूगल लग गई बाहर, और इससे बचाने के लिए हमारे जीवन में एक ही फोर्स है जो कि स्लिपिंग को हेट करती है, और वो कहाँ लगेगी, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तो उसको बाहर लेके जाना चाहती है। इसका मतलब कायदे से द फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू व्हाट, द सेंट्रीफ्यूगल, यही होनी चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। सो सेंट्रीफ्यूगल कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखो फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक, क्योंकि एक्चुअली तो ना वो बाहर को मूव करेगा ना अंदर को, वो अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन दुश्मन को देख के लगती है। इसका मतलब अगर सूडो ज्यादा हुई, m ओमेगा स्क्वायर आर अगर ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ा लेगी। m ओमेगा स्क्वायर आर अगर कम हुआ, रेडियस कम हुआ, तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू घटा लेगी। उसको तो एडजस्ट करके उसको रेस्ट पे रखना है ना, इससे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फ्रिक्शन। तो कहां तक झेल पाएगी, जब तक उसकी ताकत हो मैक्सिमम, कौन सी, लिमिटिंग। इसका मतलब जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगी उस समय, ओमेगा तो कांस्टेंट बोली हमने ना, तो रेडियस कितना होगा, उस रेडियस को क्रिटिकल बोल रहे हैं, उसके बियॉन्ड रखा होगा। अगर रेडियस आरसी से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगी, बचा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब सूडो ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पहाड़ों पे बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो गए आप। तो सिमिलरली ये अगर ज्यादा दूर रखा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगी, फिर ये कॉइन नहीं बचेगा, ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा। सो दिस इज अ क्रिटिकल रेडियस। कैसे मिलेगा, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन कैसे आती है, म्यू इनटू एन, याद होगा, अभी हाल फिलहाल ही करा हुआ है। और एन कैसे आती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में mg के बराबर है।
Hence this becomes mu into mg as equal to m omega square into rc. M and m gets cancelled, so therefore mu into g upon omega square, that becomes rc. So what is rc? That is a critical radius. इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में भी सवाल है और कंपटीशन में भी सेम सवाल पूछा गया हुआ है. क्या सवाल जी? देखो कि कौन सा कॉइन स्लिप करेगा, कौन सा नहीं करेगा. क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसके अंदर ऐसा गिवन होता है कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं और एक को आपका 6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, एक को 14 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और एक एंगुलर स्पीड गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है. अब आपने क्या करना है, हाउ टू अटेम्प्ट. आप जो म्यू की वैल्यू गिवन होगी यहाँ प्लेस करोगे, जो ओमेगा गिवन होगी यहाँ प्लेस करोगे. उसके अंदर शायद ना 33 1/3 आरपीएम ऐसे दिया हुआ है. 33 1/3 आरपीएम कितना हो गया? 100/3 आरपीएम हो गया. इसको पहले आरपीएस में कन्वर्ट करो. समझ आ रही है? आरपीएम है ना, तो आरपीएस में कन्वर्ट कर लो. कर लिया. अब आरपीएस में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप ओमेगा यूज करोगे, दैट विल बी 2πf. उससे ओमेगा आ जाएगी. जब ओमेगा आ जाएगी फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. म्यू गिवन होगा, ओमेगा आ गई, उससे आप आरसी कैलकुलेट करेंगे. जब आरसी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, उसके अंदर शायद म्यू 0.15 गिवन होगा, उससे कैलकुलेट करके ना आरसी की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी. कितनी? 12 सेंटीमीटर इस डेटा के हिसाब से. फिर आपको गिवन है कि दो पॉइंट्स है, R1 कितने पे? 6 सेंटीमीटर पे, R2 किस पे? 14 सेंटीमीटर पे. तो क्लियर हो गया जी, ये क्रिटिकल रेडियस है. फॉर ऑल द रेडियाई व्हिच आर ग्रेटर देन RC, द कॉइन फ्लाइज ऑफ, क्योंकि उस पे सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगी. और अगर R की वैल्यू लेस देन इक्वल टू RC है, सो कॉइन मूव्स अलोंग द टर्न टेबल, उसके साथ साथ मूव करेगा. दैट मीन्स इट रिमेन्स एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेबल. Which means अब चेक कर लें R1 क्या आ रही है, और it is coming less than the critical, so therefore it remains at rest with respect to the turntable. So it is at relative rest with respect to the turntable. लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा है, इसका मतलब इस पे सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा आएगी, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगी, तो पार्टिकल एक्सेलरेट मारेगा बाहर को. It will be more than the limiting friction, so therefore the coin flies off. So that's famous as the gramophone problem. आप turntable problem बना सकते हैं. Right, my dear. Right, my dear. So the last for today, this is known as the bending of cyclists. What is it? The bending of cyclists. Last article for today. Bending of cyclists. What is the bending of cyclists? अरे देखो, आपने देखा होगा साइकिल रेसेस में ये सारे बेंड करे हुए हैं. क्यों? अरे कर्व पाथ पे जा रहे हैं ना, इसलिए सारे बेंड करे हुए वर्टिकल से. ऑल ऑफ देम है बेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल. कोई एंगल बना रखा है इन्होंने, सभी ने, क्योंकि सबको साइकिलिंग आती है ना. जिसको नहीं आती है उसकी बात अलग है. हाई स्पीड पे नेगोशिएट करने के लिए, स्लो नहीं कर सकते ना रेस है, तो हाई स्पीड पे नेगोशिएट करने के लिए क्या करते हैं, ये बेंड करते हैं, अपनी बॉडी को बेंड करते हैं. स्किल मोशन. ये मोटरसाइकिल का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली साइकिल का ही क्वेश्चन आएगा. मोटरसाइकिल साइकिल ही है. तो क्या हो रहा है, वर्टिकल के साथ में बेंड है, देयर इज एन बेंड, इसको लीनिंग बोलते हैं. इट्स लीनिंग विद द वर्टिकल. लीन करना किस तरफ? रोड की तरफ. जिस तरफ आपने कर्व करना है उस तरफ कर्व करा जी, करते हैं जी, चौके जी. तो ये क्या है? रिएक्शन. अरे रिएक्शन कैसे? अरे भाई ये ऐसे दबाते हैं तो एक्शन आती है, याद होगा फुट वाला क्वेश्चन, याद है वो? बिल्कुल याद है सर. उससे रिएक्शन आती है, सो आर इज अ रिएक्शन. रिएक्शन एक एंगल पे आ रही है, करा हुआ है ना आपने? बिल्कुल करा हुआ है. तो रिएक्शन एंगल पे आ रही है, तो उसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा आर कॉस थीटा, और दूसरा कॉम्पोनेंट कहां पर आएगा? इस तरफ, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, जिसको फ्रिक्शन भी बोला जाता है. याद आई? हाँ सर याद आई. फिर क्या? अरे सर फिर देखो ड्यूअल रोल हो गया, डबल रोल हो गए. क्यों सर? देखो ऐसा है, ये जब सर्कल में घूम रहा था ना, चाहे साइक्लिस्ट चाहे मोटरसाइक्लिस्ट, इसमें ना सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रही थी. क्यों? अरे सर क्योंकि रिलेटिव ओमेगा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल बाहर को लग रही थी. तो ये तो अपना पाथ छोड़ के बाहर को चल लेता. लेकिन सर देयर वाज आर साइन थीटा, क्योंकि वो करेक्ट एंगल पे बेंड हुआ. वो एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद होगा. करेक्ट एंगल पे बेंड हुआ, तो करेक्ट एंगल पे बेंड होके एक करेक्ट फोर्स आई आर साइन थीटा,
जो कि सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगी। बात समझ में आ रही है? और साथ में सर आर कॉस थीटा उसके वेट को भी बैलेंस करेगा। तो जैसे अभी हमने कोनिकल पेंडुलम में देखा कि क्या हो रहा था, टेंशन का डबल रोल था, एक कंपोनेंट उसका सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा था, दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा था, वेट को बैलेंस। यहां पर वो रोल किसका है, कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। सो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट r sin थीटा ओवर हियर इज इक्वल टू m, मर्जी आपकी, v स्क्वायर बाय r लिख लें, v स्क्वायर बाय r, क्योंकि इस बार टर्न टेबल तो है नहीं, साइकिल की अपनी स्पीड होगी जिस स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये भी तो बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हमने बड़े फॉर्मूले बनाए हुए हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मौके पे कौन सा यूज होगा, आपकी इंटेलिजेंस या फिर क्वेश्चन की पूछ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई। पहले ओमेगा का डिस्कशन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, अब थोड़ी है, अब क्या, साइक्लिस्ट की स्पीड है, व्हाट इज द सेफ स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ये क्वेश्चन है। तो कौन सी एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड v, सो एम वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लिया। वर्टिकल से r cos थीटा बिकम्स इक्वल टू mg, ये क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करें, डिवाइड करो। सो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, दैट बिकम्स mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। m एंड m gets cancelled, r and r gets cancelled, sin theta by cos theta कितना है, tan theta, that becomes v square upon rg, and so we are able to find the theta, that is tan inverse of v square upon rg. What is v? v is the speed of the cyclist, जिस स्पीड से वो मूव इन कर रहा है। g तो आपको पता है, और r क्या है, that is a radius of curvature। ये तो चलो एक हाइपोथेटिकल सा सिनेरियो हो गया कि ऐसी फील्ड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अदरवाइज हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता रहता है, और क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता रहेगा तो हर बार जितनी बेंडिंग लीनिंग आएगी वर्टिकल के साथ साइक्लिस्ट की, वो चेंज होती रहेगी अपनी स्पीड के हिसाब से भी, अपनी स्पीड के हिसाब से भी। अब एक ये सोचो अगर स्पीड को डबल करी, स्पीड को डबल करा तो एंगल 4 टाइम्स नहीं होगा, tan थीटा 4 टाइम्स हो जाएगा, because the tan theta is proportional to v square. So be very careful in the options. क्वेश्चन बोलेगा स्पीड डबल करा, तो व्हाट अबाउट अ लीनिंग एंगल, तो आप बोलोगे सर v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, तो एंगल 4 टाइम्स हो गया, एंगल 4 टाइम्स नहीं हुआ, tan थीटा 4 टाइम्स हो गया, ध्यान रखिएगा। और बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी रोल होता है। सो यू मस्ट रिक्वायर अ लार्ज कर्वेचर, साइक्लिंग इज इजी ऑन द लार्ज कर्वेचर, फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक्स आर ऑफ लार्ज कर्वेचर। लार्ज कर्वेचर का फायदा क्या है, अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो एंगल कम आएगा, कम लीन करना पड़ेगा। For maintaining the high speed, you will have to lean lesser, and that's the reason the high radius of curvatures are created on the competitive tracks. Oh, competitive आ गया यहाँ पे भी, और tracks है ना, कि आप compete कर रहे हैं, चाहे car racing, चाहे bike racing, चाहे cycle racing, it has to be a path of the large radius of curvature. तो रोड डिजाइनिंग भी होती है ना, सारे ट्रैक्स एक जैसे नहीं होते, साइकिल ट्रैक्स एक जैसे नहीं होते, गाड़ी के ट्रैक्स एक जैसे नहीं होते, राइट। तो हमारा आज का आर्टिकल यहाँ पे रुकता है, स्टॉप लेता है, पॉज लेता है। हमने अच्छी फोर्स डिस्कस करी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स व्हिच अराइजेस बिकॉज वी हैव अ रोटेटिंग फ्रेम, चाहे फ्रेम खुद रोटेट कर रहा हो या उसके ऊपर जो पार्टिकल है वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हो, दोनों ही आइडियाज में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम या तो फील होता है या एग्जिस्ट होता है, उसकी वजह से सूडो फोर्स जन्म लेती है। उस सूडो फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रीपिटल, एक कोरियोलिस। नो, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक कोरियोलिस। कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो साइड वेज लगती है, उससे साइड वे डिफ्लेक्शन आती है, जिसके ऊपर हम सवाल नहीं बना रहे हैं, आइडिया जरूर डिस्कस करना था। और जो आसान वाली फोर्स है वो कौन से, सेंट्रीफ्यूगल, वो कहाँ लगती है, रेडियली आउटवर्ड लगती है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। रीजन सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है तो वो नॉन न्यूटन फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, और वो एक टेंडेंसी क्रिएट करती है सर्कुलर पाथ को छोड़ने की। तो कोई ना कोई रियल फोर्स आके क्या करेगी, उसको काउंटर अटैक करेगी ताकि सर्कुलर पाथ मेंटेन हो पाए। और वो रियल फोर्स टेंशन हो सकती है, mg हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, ऑल द रियल फोर्स व्हिच वी हैव स्टडीड, उनमें से कोई एक फोर्स आके क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगी। कई बार मामला इस कदर हो जाएगा कि उस फोर्स को कई बार डबल डबल रोल भी करना पड़ सकता है, जैसे कोनिकल पेंडुलम में और इस वाले क्वेश्चन में। कोनिकल पेंडुलम में टेंशन, उसका डबल रोल था, एक कंपोनेंट क्या कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस, और दूसरा वेट को बैलेंस। सेम इन दिस क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट में लीनिंग विद द वर्टिकल में, कि एक कंपोनेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का, फोर्स बदल गई, है तो रियल फोर्स ही ना,
तो फोर्स का नेचर बदल गया, कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, हवा में तो साइकिल चला नहीं रहा, सो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, धागा तो बंधा नहीं है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट साइमल्टेनियसली वेट को बैलेंस कर रहा है, तो फिर हमने एंगल विद द लीनिंग बना लिया है। चलो जी, ठीक है, तो आज का आर्टिकल यहाँ क्लोज करते हैं। वी विल टेक दिस स्टडी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ।